by Major Dr. Gulshan Sharma, retired AG, ICSI Service Industry Strategist and Inspirational Speaker and Life Coach. Let's welcome Major Dr. Gulshan Sharma. Because जोरदार तालियां हमारे chairperson के लिए who's going to chair the session. Ladies and gentlemen, we're not getting any energy. What has happened? Come on, an round of applause. Everyone, come on. It is still the first half and we're very active, we suppose. The session will be joined by the very dynamic Mr. Rajan Sehgal once again. Rajanji, we welcome you back on the dais, the President of Indian Golf Tourism Association. Once again, please put your hands together to welcome Mr. Rajan Sehgal. Joined by Mr. Sudhir Sopi, Vice Chairman, Public Relations Council of India, Delhi Chapter. Welcoming Mr. Sudhir Sopi. Please put your hands together, everyone. So, very warm welcome, everyone. And we hand over the proceedings to the chairperson for the session. So. Thank you very much. You know, it's always the anchor who basically makes or breaks the show. Anchor plays a very important role and she has got such a vibrant energy. Blessings to you. Thank you very much for introducing the session so well. Now, ladies and gentlemen, these are very challenging times for all of us, particularly my colleagues also from the industry and all of us together. 25th of March 2020 onwards, this is my first outing, first visit, first travel. I just, confined myself to one particular place and we completed about almost 1150 webinars. And they were all basically repackaging, rejuvenating, rethinking, whatever has to be done in travel and tourism industry. Because having spent about 4 decades with this industry, I can feel the pain. The people sitting across on the other side, my brothers and sisters and the same family. If I talk about Lotus, when I talk about Lajpat Rai ji, when I talk about a couple of other dignitaries, those are sitting over here. Some of us we have met earlier, but some of us might be meeting for the first time. Although I come from the armed forces background, but there are very less privileged people, those have got a direct connection with the Almighty, and He listens to their prayer also sometime very deeply. I did my master's and PhD both into service industry when nobody was knowing service industry. And I moved on deputation to the Ministry of Tourism, Government of India, served in the center, and that was the time, for the first time, it was realized that Ministry of Tourism, Government of India needs its own building. Till date, we are housing ourselves in the Transport Ministry, which has yet to come up. And at the same time, what is the backbone of the industry? Everybody from the travel trade, whether travel agents, tour operator, tourist transporter, hoteliers, everybody, you look forward to the correct manpower, right manpower, the well-developed manpower. And with our entire team, we set up India's first institute, that is IITTM, under the Ministry of Tourism, Government of India. And when I look back sometime, I pinch myself, how is it possible that coming from a very rural interior background of the country and having got just about 35% mark in the 11th class, having done the graduation from the Indian Army and perforce thereafter doing masters and PhD in service industry with specialization in tourism, you do and you draft and you develop the MBA tourism for India, and that was done in 1988. And thereafter we took that MBA tourism across India, and today I'm very happy that almost 147 universities are having MBA tourism, MTM tourism, and a couple of other programs they have given. Besides that, 745 colleges, they are having travel and tourism short-term and long-term programs. Besides that, you've got a very big hotel management programs also going across in public-private partnership or in government alone, whatever is being done. Now today, when we all are meeting in challenging times over here,
we are going to discuss some new avenues. We got to rethink and we got to really repackage. Whatever we have been giving before pandemic, would that continue? Would that be saleable? Would that be acceptable? Will people really take it? What exactly is going to be the new norms and how we are going to proceed? That is something very important. And when we talk about that, I think it's a great initiative. First of all, let's put our hands together for Mr. Ajay Gupta and his organization, because taking a lead at this point of time and bringing efforts, putting efforts, bringing Tamil Nadu all the way, coming Madhya Pradesh all the way, coming Uttar Pradesh all the way, and of course other states, those are participating over here. It's a great compliment to Mr. Ajay Gupta. That shows the passion, that shows the vision and the dedication of the person. And that's why at this age of 72, he could pull me out. Otherwise, I was very happy. Most of us, we have got into the mode of the Zoom. And I feel very happy to meet Mr. Sehgal on Zoom. We both see only this much portion and we are happy. And that goes with Mr. Sudhir Sokti also. You can be as vibrant, as young, as smart, as you look on camera, and that's the way. And when I talk about camera, today I'm going to take you to the new world. When we are talking about domestic tourism, green tourism, nature tourism, ecotourism, wildlife tourism, traveling to the neighboring places and going to other places, before Mr. Sehgal gets annoyed, I must talk about golf tourism also, holiday and leisure tourism also. That got to be very important. Before Sudhir Sokti get upset with me, I must talk about public relations, I must talk about communication, I must talk about heart to heart, soul to soul, mind to mind, how important it is in tourism. But when I look at Lajpat Rai ji, and when I think about Gorakhpur, when I think about his hotels, when I think about Buddhism, when I think about those chartered flights, something repackaging has to be done with tourism, with hospitality, with aviation, with retail, one more industry which can revive and which can rejuvenate the entire media entertainment industry in the shortest possible time, and that is media entertainment industry. When I talk about media entertainment industry, you may talk it a film tourism, you may call it a cinematic tourism, you may call it media entertainment tourism. The thing is, any tourist attraction which we have been offering as a dream merchant, when we have to repackage, media entertainment industry plays very important role. Because when I'm looking back at my journey, I still recall when I left Ministry of Tourism, Government of India, I picked up only three things: cinematic tourism, medical tourism, and NRI tourism. That is in 1994, I'm talking about. And Punjabi Parvasi Divas was the first which was brought, and almost about, it started with 6,000 NRIs and it moved to almost 70,000 NRIs. And that is the time the Honorable Prime Minister of India, he got the flavor, fragrance from everywhere. And that time the Prime Minister of India, great visionary, he thought of, why not to invite, who are these people? What exactly are they doing? And what is Punjabi Parvasi Divas? And what is this Balle Balle, what these people are doing? Because Surinder Kaurji was live that time, three generations singing together. Surinder Kaur, her daughter, Dolly Guleria, her daughter, Sunani, and now her daughter, Ria. Four generations together, Punjabi Parvasi Divas put together. And then there was a birth, because in September 2002, we all met the Honorable Prime Minister of India for a cup of tea, and there was Pravasi Bharatiya Divas. And that brought once again the oxygen to our chamber. Today, with about 12 lakh non-resident Indians world over, those are our members directly associated.
and there are 31.4 million non-resident Indians. Why I'm talking about tourism and cinematic tourism in the setting context? Because some of the films, some of the television serial, some of the music albums which go flop in India, they do extremely well and they generate revenue with our non-resident Indians. थोड़ा सा अंदर झांक के देखिए. आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन पंजाबी स्पीक्स इंग्लिश जैसे झूठ बोल रहा है. सो द थिंग इज आई हैव टू टॉक लिटिल बिट इन हिंदी आल्सो and just giving a mark of respect to those people coming from down south and don't understand. That's why I'm talking in English language. लेकिन अब 3 महीने कहीं बाहर घूमने के लिए जाइए. When I took 100 days trip abroad, non-stop, traveling to almost about 34 countries. आते टाइम सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? एयर इंडिया की फ्लाइट मिल जाए, छोले भटूरे मिल जाए, इंडियन खाना मिल जाए, इंडियन देखने को मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए. And same is the feeling of our Indian diaspora, non-resident Indians. Those are abroad. You do not know. उनमें से बहुत लोग वापस आना चाहते हैं, और वो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, बच्चे यहीं बड़े हुए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन यहीं हैं, जाएं तो वापस कैसे जाएं? अब तो हम सिर्फ घूमने आ सकते हैं. और हमने उनको रिक्वेस्ट किया, नो वरीज, once these challenges we overcome, let's work on to media entertainment. So ladies and gentlemen, if we are really serious to promote and repackage, regenerate, rethink, whatever you want to, somebody has used a very harsh term. I think we should not be using. Somebody has told revenge tourism. No. I think that's not an appropriate word. We should never use the word revenge. हम तो polite लोग हैं, हम तो नम्र भाव के लोग हैं. Revenge is not a word. You can repackage it with something else. Revive the tourism, repackage the tourism, rethink the tourism, rejuvenate the tourism, re-empower the tourism, whatever we want to say. And when you serve the armed forces, one destination and one area is very important next to our heart, and that's called Ashtalakshmi, the 8 states of the northeast part of India. I might have been born in North India, but I have served 40 years in the northeast part of India. And some of the people staying in northeast may not be knowing so much of different tribes, culture, art, craft, cuisine, dances, music, people, as you serve in the armed forces. और बहुत सारे लोग tourism में काम कर रहे हैं, but you might have not traveled to those destinations which we in uniform we get an opportunity to travel. So thereby, let's rethink about tourism, let's repackage tourism, let's revive tourism. And once again, अजय गुप्ता जी ने मुझे कोई sponsorship के charges नहीं दिए हैं, but still we can clap for him, and he had been very kind to bring me all the way, and we just thought, let's think about it, what exactly media entertainment industry can do. My family goes deep into media entertainment. My daughter from the film industry, my son-in-law from the film industry. मेरे छोटे भाई का बेटा कहता, ताऊ जी मैं पढ़ना नहीं चाहता. तो मैं क्या करोगे? मैंने बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्या करोगे वहां पर? ताऊ जी मैं धर्मेंद्र की तरह एक्टिंग करूंगा. And I'm shocked. He just did bachelor's in media entertainment and film technology management, and today he has got a palatial house, he has got 2 Mercedes, he has got a good bank balance, he is doing extremely well, and nobody can promote tourism more than him. He says, ताऊ जी जिस दिन जरूरत हो मुझे बुला लेना, 40 लाख लोग सीधे जुड़ जाएंगे आपके साथ. And that is Fukre Part 1, Fukre Part 2, Chucha character, Varun Sharma, my younger brother's son. And he is doing, और आप एक मूवी देखिए छछोरे, एक्टर कोई और है, हीरो कोई और है, पर मूवी को चलाने और लेके चलने वाला कोई और है. So that is what is the power. Travel agents and tour operators, पहली बात तो हम इसको भी recoining करवाएं. We should not call it travel agent. We should call it travel facilitator.
It sounds very good. अभी गोल्फ खेल के आए और सहगल साहब कहें आई एम वेरी टायर्ड, ये अच्छा नहीं लगता. अगर ये कहें आई एम प्लेजेंटली टायर्ड, तो लगता है कि कुछ करके आए हैं, अच्छा करके आए हैं, एंजॉय करके आए हैं. Similar way, let's travel. Media entertainment industry is waiting. They want to join hands with tourism. And what better example I can set up for you that in Noida, 1,000 acre UP government bringing film city. And if you see that blueprint of 2,000 pages, I have read each and every word of the DPR. If you'll go through that detailed project report, और कब का टाइम पीछे लेके चलिए, एयर इंडिया की फ्लाइट बहुत सारी डेस्टिनेशन को नहीं जाती थी, बट देयर वाज अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू श्रीनगर. आई एम टॉकिंग अबाउट दोस टाइम्स. नाउ आई एम टचिंग 72, बट देयर आर सर्टेन पीपल, इफ यू लुक बैक 50 इयर्स, उस समय एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर जाती थी, और कश्मीर की कली जब जब फूल खिले और ये सब बनती थी, और वो गाने, वो म्यूजिक, वो संगीत, वो गीत, आरजू है ना, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, वो लगता है कि याद करता है. टूरिज्म क्या है? टूरिज्म बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यू आर सेलिंग इमोशन. एंड मीडिया एंटरटेनमेंट टूरिज्म क्या है? सिनेमैटिक टूरिज्म क्या है? फिल्म टूरिज्म क्या है? दैट इज आल्सो इमोशंस. सो लेट मी टेक यू नाउ. आई विल इंट्रोड्यूस यू because we have got a lot of people, those are joining us today, and my basic efforts are that let's rethink about it, let's redesign. हर एक ट्रैवल फैसिलिटेटर की ऑर्गेनाइजेशन में एक फिल्म टूरिज्म वाला भी बंदा एम्प्लॉयड होना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू रिवाइव फास्टर, if you want that we should recover faster, media entertainment industry is going to play a very important role. I have seen Sunil Grover has gone from my hands. Mahi Gill has gone from my hands. There are so many other people, if I talk about, those have gone to Bombay, those have gone to that industry. Okay, Khushbu Kochar, she has gone from our hands, from our chamber. And our chamber is proud of it that 52,000 students, without spending single rupee, they got education, they got employment. And now we are coming out with a new movie. That production is coming in December, that will revive a new kind of a cinematic tourism. We will discuss and we will revive in a little while. But now let me extend a very warm welcome to Madam Anshu Harshji. She is from Jaipur at present. She is joining us from Jaipur. She is a chairperson of Rajasthan International Film Festival. When you talk about, give a big hand, let her also hear not only my voice, the hands are coming from that side, ma'am, all the way. Thank you. And we would like to get you right over here, and we would take you on the speaker's mode. And here is Madam Anshu Harshji. ये राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, और उसके ज्यादा साथ कहूं तो बहुत डीपली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, टूरिज्म को भी समझती हैं, टूरिज्म की नर्व्स को भी समझती हैं. और अभी अभी पीछे पिछले हफ्ते इनकी बुक रिलीज हुई है, और मैं इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इनकी तारबीत खुदा से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उसकी पोइट्री से भी, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है. और लेट्स मूव ऑन विद अंशु हर्ष मैम, द चेयरपर्सन Rajasthan International Film Festival, and she is going to share her vision. And ma'am, please do tell us what are the difficulties also experienced. पहले पॉजिटिव बात करते हैं, फिर हम थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे, फिर ट्रैवल ट्रेड को. और आज हमने मॉर्निंग में अजय गुप्ता जी के साथ जितने लोग इस हॉल में जुड़े हैं, उनसे कंसेंट लेके, वी विल नॉट कॉल इट ट्रैवल एजेंट, वी विल कॉल ट्रैवल फैसिलिटेटर्स, because we'll coin the new word, because एजेंट सुनते ही लोगों को लगता है कैसा एजेंट है, इंश्योरेंस का एजेंट है, कहाँ का एजेंट है, कैसा एजेंट है, क्या कमीशन लेगा. तो अब तो कमीशन कहाँ की रह गई है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल दिया है. So with these words, Anshu Harshji,
Give us the canvas of the Rajasthan film tourism, the film shootings, what all is happening over there, and what is the future vision. When is your next film festival and how do we open? और उसके साथ हमारे राजन सहगल जी जो चेयरपर्सन हैं आपके पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं और पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के और दिल्ली टूरिज्म में पीके की पूरी शूटिंग इन्होंने करवाई और इनको क्या क्या तकलीफ आई वो बाद में बातचीत करेंगे। पर आज हम अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि न्यू मेरिडियन का ये पहला इवेंट है, अजय गुप्ता ने जो करवाया है पूरे होटल की फ्रेग्रेंस को चेंज करके। सो विद दीज वर्ड्स, अंशु हर्ष मैम, द चेयरपर्सन राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Gulshan sir, and it's my honor and my pleasure to be here, especially on this occasion. तो जैसा कि आपने कहा कि हम पॉजिटिव बात करेंगे, एक अच्छी एनर्जी को स्प्रेड करेंगे। तो फिल्में जो हमने फेस्टिवल शुरू किया, फिल्मों का जो ये फेस्टिवल है, सबसे पहले तो आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, जयपुर और जोधपुर, जयपुर का हवा महल और जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो राजस्थान के किसी भी एंगल पे आप कैमरा रखेंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हमेशा नजर आएगी और वो कैमरे में कैद करने को आपका मन करेगा। फिल्मों में भी आपने राजस्थान की खूबसूरती को बहुत देखा है और 2015 में हमने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत इसी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए कुछ मूल बेसिक जो चीजें हम फिल्म में देखते हैं, बहुत ही एक कॉमन थॉट होता है कि एक कॉमन मैन जो होता है वो क्यों फिल्म देखता है, वो मोटिवेशन के लिए फिल्म देखता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखता है, वो नॉलेज के लिए फिल्म देखता है। तो बस कुछ इसी तरह के विचारों को लेके हमने फिल्म फेस्टिवल को शुरू किया कि फिल्में देख के, जो फिल्मी हीरो को देख के एक मोटिवेशन कॉमन मैन की जिंदगी में आता है, वो किस तरह से आता है और किस तरह से वो उसको बदल देता है। तो कॉमन मैन इन सिनेमा हमेशा हमारे फेस्टिवल की हमेशा कुछ थीम्स रही हैं, उनमें से कॉमन मैन इन सिनेमा रहा है, विलेज वर्सेस ग्लोबल विलेज रहा है कि हमने सिनेमा को पहले जब हम देखते थे तो उनमें गांव दिखाई देते थे। हिंदुस्तान फिल्मों की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज की फिल्में हम देख सकते हैं जिनका सिनेरियो बिल्कुल रूरल होता था। नदिया के पार आप फिल्म देखिए, बैलगाड़ी में सफर करता था, राज कपूर भी आपको उस दौर से याद आएंगे और एकदम रूरल, बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ सिनेमा वो होता था जहां पर किसी गांव की, कस्बे की खूबसूरती आपको नजर आती थी। फिर वो एकदम टर्न हुआ और ग्लोबल विलेज की तरफ वो चला गया। ग्लोबल विलेज से आप यहाँ पर समझ सकते हैं शहरों की तरफ वो आया, विदेशों की तरफ वो गया और हमने घर बैठे हमने सिनेमा की स्क्रीन पर उन फिल्मों के जरिए विदेश भी घूमे। तो ये चीजें फिल्में हमें देती हैं कि हम एक जगह बैठकर बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जहां पर हम सिनेमा की बात करते हैं, जहां पर हम ट्रैवल डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। न्यू टेक्निक्स इन सिनेमा, सिनेमा में नई नई टेक्निक्स हर दिन अपडेट होती हैं। हर साल दर साल हम फिल्मों को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पहले जब संगीत बनता था तो उस संगीत के बनने में लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एक ग्रुप में बैठकर बात किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे और फिर वो गाना बनकर आपके सामने आता था। तो उस गाने का मर्म भी शायद उतना ही गहरा होता था, लेकिन तकनीक ने उस चीज में बदलाव किया। समय की सहूलियत को देखते हुए लिरिक्स राइटर लिरिक्स लिख के दे देता है, म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज अपने इलेक्ट्रॉनिक पूरे स्टूडियो में कर देता है और फिर गायक आके उसको गाकर चला जाता है। आपस में उन तीनों की बॉन्डिंग हो, वो मिले, मीटिंग करें, वो जरूरी नहीं है। तो वो गानों का जो मर्म होता है जो पुराने जमाने में हम देखा करते थे, वो संगीत भी आजकल आपको बदला हुआ नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये कि सिनेमा ने हमें जो हमारी जिंदगी का बहुत इमोशनल पॉइंट जो हमेशा से छुआ है, वही चीज आज हमें लॉस्ट होती हुई नजर आ रही है। और हमारे फेस्टिवल में हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम ऐसे सिनेमा को
हमेशा आगे लाएं, जो जिंदगी से जुड़ा हुआ सिनेमा है, जहां पर बहुत मेहनत करके काम किया गया है, तो वो चाहे फिल्म्स हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, रीजनल जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की फिल्म्स हो, हर तरह का सिनेमा हमारे फेस्टिवल में हर साल आता है। जनवरी में हम जयपुर में हर साल इसको फेस्टिवल को करते हैं, और इस साल 2021 में हमने इसको फेस्टिवल को जोधपुर ट्रैवल करवाया था, और अब 22 में भी हम मार्च की लास्ट वीक में जोधपुर में ही इस फेस्टिवल को करने वाले हैं। तो फिर अगर हम और थीम्स की बात करें तो हमारे फेस्टिवल की थीम रही है म्यूजिक सिनेमा, जहां पर हमने म्यूजिक को प्रेफरेंस दी, सिनेमा में संगीत की बात करी। फिर हमने बात की विमेनहुड इन सिनेमा, सिनेमा में महिलाओं का जो काम रहा है, जो पुराने दौर से जो चली आई है, वो सारी चीजों की हमने बात करी। करंट में अभी जो क्या रहा है, तो फेस्टिवल के दौरान पैनल डिस्कशंस होते हैं, फिल्म स्क्रीनिंग्स होती हैं, उन पर बात की जाती है और चर्चा की जाती है। उसके साथ सारे फिल्म मेकर्स अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पर मैं टूरिज्म से जो भी लोग जुड़े हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब हमने मार्च 21 में फेस्टिवल किया था अभी जोधपुर में, तो लगभग 60 से 70 फिल्म मेकर्स हमारे साथ पूरे देश से जुड़े थे। दुनिया से नहीं कहूंगी क्योंकि पैंडेमिक टाइम में अभी इंटरनेशनल ट्रेवल बंद थे, अदरवाइज हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म से जुड़े लोग हमेशा हमारे फेस्टिवल में ट्रैवल करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आर्ट और कल्चर को जब हम ज्वाइंट करने की बात करते हैं, जब हम एक दूसरे से सीखने की बात करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, और कुछ ना कुछ नया जरूर निकल के आता है, क्योंकि एक कला तभी विस्तार पाती है जब वो दूसरी कला से कुछ सीखती है। तो इस तरह से हमारे फेस्टिवल के थीम्स रहते हैं, हर साल कोई ना कोई थीम बेस्ड रहता है, तो एक पर्टिकुलर फिल्म हम उसको डेडिकेट करते हैं। समाज और सरोकारों की बात करते हुए फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। मुश्किलें इसमें ये आती हैं कि राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ, और राजस्थान में जितना रिच आर्ट एंड कल्चर इटसेल्फ है, नेचुरली है, सरकार उसका यूटिलाइजेशन उस तौर पे हमसे नहीं करवा पा रही है, वो हमको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। कारण बहुत सारे होते होंगे, मैं नहीं जानती कि इंटरनली, क्योंकि मैं बहुत एक कॉमन मैन की तरह बात हमेशा सरकार से भी करती हूँ और यहाँ भी कर रही हूँ कि अगर कोई फेस्टिवल प्राइवेटली करके और वो उस लेवल पे लेकर चला गया है फेस्टिवल को, जहाँ पर देश विदेश में उसकी बात हो रही है, लेकिन उसकी अपनी सरकार आज भी उस चीज से अनभिज्ञ है। अभी हमने रिसेंटली सिनेमा स्थान राजस्थान का पहला OTT लॉन्च किया है, परसों ही इसका लॉन्च हुआ है, जहां पर हम राजस्थानी, बहुत मुबारक है आपको, बहुत बहुत मुबारक है जी, थैंक यू सो मच। और राजस्थानी कंटेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन जैसा जो फेस्टिवल में सिनेमा आता है वो सारा सिनेमा उस पर अवेलेबल रहेगा, वो चाहे नेशनल लैंग्वेजेस हो, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हो, उसी को ध्यान में रखते हुए सिनेमा स्थान का लॉन्च किया गया है। तो ये बात भी हमने सरकार तक पहुंचाई है कि इसको किस तरह से और स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ इस मंच से सरकार मेरी सुने और कुछ आगे पॉजिटिव चीजें हो सके। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मार्च की लास्ट वीक में 22 में जोधपुर में ये फेस्टिवल को हम फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। rifjaipur.org पर आप सारी डिटेल्स इसकी ले सकते हैं, वहां पर फिल्म सबमिशन भी ओपन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपके OTT प्लेटफॉर्म के लिए, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू, सच अ वंडरफुल प्रयास आपका। अब मैं आपको एज ए एल्डर ब्रदर, क्योंकि बड़ा भाई होने का ना बायोलॉजिकल होने का कुछ एडवांटेज तो मिलता ही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस को अपनी किताब दिखाइए जो आपने पिछले हफ्ते रिलीज की है, और उस किताब में से कुछ इमोशनल, क्योंकि मूवीज क्या है, इमोशन है, टूरिज्म क्या है, इमोशन है, और इन सब से मैं कमिटमेंट ले रहा हूं, इन सबको हम जयपुर लेके आएंगे मार्च में। आप तैयार रहिए इन सबको रिसीव करने के लिए। They all will come. We all will come to Jaipur, and that is in your March 2022. We will come there. आप थोड़ा सा अपनी किताब दिखाइए। तो yes, heartiest congratulations to you. ये मैडम की लेटेस्ट बुक है जो इन्होंने पिछले हफ्ते रिलीज की है,
अब इसमें से जल्दी से हमें 4 लाइनें कोई पढ़ के बता दीजिए, जल्दी से आप कोई 4 लाइनें पढ़ के जो बहुत ही भावुक हो, इमोशनल हो, और ये सब अपने अपने ट्रैवल ट्रेड में, अपने अपने ऑफिस में जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर नई स्किल्स क्या आएंगी वो फिर पंकज जी आगे लेकर चलेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप 4 लाइनें कहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, थैंक यू सो मच। ये मेरी किताब अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसका नाम है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव वैसे तो प्लेटोनिक लव, अशारीरिय प्रेम इसका अर्थ होता है, लेकिन मैंने इसको जो टैगलाइन दिया है वो आध्यात्मिक प्रेम, मैंने इसका ट्रांसलेशन अपने तरीके से किया है। इसी में से कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जो पंछियों के साथ अनुभव करके देखिएगा कि आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखने का एहसास इतना नाजुक है। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखने का एहसास इतना नाजुक है कि मन करता है अपनी दोनों हथेलियों के बीच थाम कर इन्हें महसूस करूं, वैसे ही जैसे तुम्हारे होने को महसूस करती हूँ मैं अपने मन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। As an elder brother, I send you all my blessings. Thank you very much for joining us. Thank you very much for being with us. And we would certainly join in March 22. We all will come. आपने जोधपुर सेकंड टाइम में बोला, जयपुर पहले बारे में बोला, तो जयपुर में है ना? 22 में हम इसको ट्रैवल कर रहे हैं। जो 22 वाला है वो जयपुर में होगा, जोधपुर में, वो जोधपुर में होगा, लेकिन लोग जयपुर घूमने आ सकते हैं, ठीक है, जोधपुर में होगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच and stay blessed, ma'am. Thank you very much. Thanks for joining us. Now, ladies and gentlemen, in travel facilitation, repackaging and rethinking and regenerating whatever we are thinking of, इस टाइम में जब हमें challenges हैं, तो अपने स्टाफ को हम जितना री-इक्विप कर लें, और एक नई बात आई है, you have to reskill yourself and you have to upskill yourself and there has to be a lifelong learning. अब मैं आपको लेकर चलता हूं रेडियो एफएम के एक बहुत जाने माने कलाकार के साथ, क्योंकि आपका जो स्टाफ है, आपके ट्रैवल ट्रेड में, आपके ऑफिस में, उन सबको मल्टी टैलेंटेड बनाइए, मल्टी स्किल्ड बनाइए। एक एनर्जी तो होती है, किसी के पास से गुजर जाओ तो कहते हैं व्हेन अमिताभ बच्चन जी जस्ट क्रॉसेस यू द टेम्परेचर चेंजेस। एक्चुअल में कोई थर्मामीटर या कोई एयर कंडीशन थोड़ी लगा होता है, उनकी आवाज का जादू होता है, उनके शब्दों का एक भार होता है जिसको आप महसूस करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स डीपली नीडेड। आप किसी को अपनी ट्रैवल आइटनरी भी दे रहे हैं तो कन्विंस करना होगा कि इस आइटनरी में मैं क्यों जाऊं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, पंकज जी आपको हम आमंत्रित करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट पंकज जी, कम लाइव, बी विद अस, और 5-7 मिनट में, 10 मिनट में अपना जलवा दे दीजिए कि आवाज का जादू क्या होता है, आवाज की कीमत क्या होती है, ट्रैवल ट्रेड में शब्दों का प्रयोग क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, मिस्टर पंकज। पंकज जी। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच गुलशन सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून। और आज जो इस सेशन में जितने भी डिग्नेटरीज हैं, जो आज यहाँ के खास एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनको मेरा नमस्कार। और अंशु मैम, आपने बहुत अच्छा, जिस तरीके से आपने राजस्थान के बारे में, जयपुर के बारे में बताया, तो आपकी बातों से, और जैसे सर ने कहा है कि आने वाले वक्त में कुछ अलग बातों को, कुछ फील्ड को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, मेरा नाम पंकज है, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। और आज जब हम बात कर रहे हैं रेडियो इंडस्ट्री की, रेडियो इंडस्ट्री है या वॉइस का, मैं कहना चाहूंगा कि वॉइस का फील्ड अलग क्या है। आवाज की जो हम बात करते हैं, ये आवाज हमारी सिर्फ रेडियो तक ही नहीं रह गई है, ये आवाज आज के टाइम में हर एक जगह पर इस्तेमाल हो सकती है एक प्रोफेशनल तरीके से। वो तरीके क्या क्या हैं? अब देखिए, आवाज की जब हमने बात करी, आप जिन्होंने चेक शर्ट पहनी, हाँ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, हाँ आपसे। अब जब मैंने ये बात आवाज में कही, हो सकता है कि वहां पर कोई चेक शर्ट में होंगे, उनको लगा कि मुझसे पूछा या क्या, लेकिन ये आवाज का एक मैजिक हुआ। शायद मैंने आपको कनेक्ट किया। आप जो अभी सुन रहे हैं, क्या होता है कि आवाज, कहते हैं कि आवाज का जादूगर क्या है, जो पेंट अ पिक्चर की बात करे।
जो शब्दों से एक दुनिया को दिखा सके। अब आते हैं हम कि जब आप, अब मुझे लगता है कि अब मैं यहां से तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी जो जनरेशन रही है वो 90s की, 2000, 2010, 2021 में आज हम आ चुके हैं और हमने इस वॉइस के अलग अलग डायमेंशंस को देखा है। हमने सिबाका संगीत माला से, हमने रंगोली के सफर से, हमने एफएम की दुनिया से, आज हम डिजिटल वॉइस में आ चुके हैं और हमने वो हर एक स्टेप में आवाज को अलग अलग रंगों में देखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज अभी जैसे गुलशन सर ने कहा कि वॉइस को लेकर अगर हम टूरिज्म की बात करें, क्या टूरिज्म के साथ वॉइस को लेकर कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। आज के टाइम में जब बात होती थी एफएम्स की, आपने भी देखा होगा जितनी भी फूड चेन्स है, जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन्होंने अपने एक रेडियो शुरू किया है। अगर आप कभी उन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको एक अलग सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज में कभी आपको गीत सुनाई देते हैं, कभी वो आपके, आप उस रेस्टोरेंट में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं जहां पर आपके टेस्ट का म्यूजिक हो सकता है। उस टाइम माइट बी यू आर फॉन्ड ऑफ गजल्स, यू आर फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, यू आर फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, बट समहाउ आपको ये लगता है कि यार जहां पर गाना मेरी पसंद का होगा वहां मैं खाना खाऊंगा। तो क्या हम इस चीज को ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्यों ना एक लिस्ट ऐसी तैयार की जाए जहां पर अलग अलग जॉनर के हिसाब से हम एक अपने ही रेस्टोरेंट का एक अपना ही रेडियो प्ले कर सकते हैं। अब उस रेडियो को प्ले करने के लिए आवाज, अब जैसे मैंने कहा कि चलिए वैसे क्या होता है, देखिए आवाज के डायमेंशंस कैसे हैं। अभी आप आपस में बात करेंगे तो बात में आपके एक वजन होगा, वेट होगा। आप एक दूसरे, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंट्री की बात करते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, आज हर तीसरा हम में से एक्सपर्ट होता है, हम उस बारे में बात करते हैं। बट जब यही डिस्कशन हमें कहीं पब्लिक फोरम में करना होता है तो शायद हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, अपना कदम पीछे, अरे नहीं 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 हमसे नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्या हम अगर पब्लिक फोरम में जाएंगे तो क्या जापान को पंजाब बोल देंगे? नहीं बोलेंगे, हम जापान को जापान ही बोलेंगे। सिर्फ ये हमारा अपने अंदर का एक भय है जो हमारी आवाज को रोकता है। अब आवाज को जब हम लेकर चलते हैं, इसके जो एक्सप्लोर करने के तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम एक डिजिटल एरा में आ चुके हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पास जब आप सुबह आपकी आंख खुलती है तो आपके मोबाइल में 5 ऐसे दोस्त हैं जिनको आपने कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक आपको व्हाट्सएप का मैसेज करेगा, उनका आपको 110% पता है कि व्हाट्सएप का मैसेज इनका आएगा। एक आपको 12 बजे के आसपास देश के बारे में कोई सटायर वाला मैसेज करेगा, उनका आपको पता है। फिर एक दोस्त आपके ऐसे होंगे जो आपको उस मैसेज को 15 लोगों को फॉरवर्ड करने का मैसेज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डिजिटल इतना ज्यादा हमारा टाइम टेबल बन चुका है, उसके बीच में हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अंशु मैम ने राजस्थान के बारे में बताया, क्यों ना जयपुर के कल्चर को लेकर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री वॉइस को लेकर तैयार की जाए। हर एक जगह का अपना एक कल्चर है। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, उस टूरिज्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर है, और उस हिस्ट्री को लेकर उस हिस्ट्री को लेकर हमारी एक कॉम्पोजिशन बन सकती है, हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है जिसको हम लोगों को बता सकते हैं। अब आते हैं जी, हम ये डॉक्यूमेंट्री को इंटरेस्टिंग कैसे करें। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात करते हुए मैं खुद को आपके बीच में महसूस कर रहा हूं, तो मैं अपनी आवाज को उस तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होता अगर मैं आपकी जगह होता, मैं अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करता? क्योंकि वॉइस का सबसे बड़ा यूएसपी आपका ये होना चाहिए कि लोग आपको सुने। बहुत सी जगह में, बहुत जगह जब कभी कोई गेस्ट आते हैं, जब वो बात करते हैं, या जब कभी हम किसी सेशन में बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें एक उबाऊ स्तर पे ले जाती है, लेवल पे ले जाती है, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कनेक्ट फील करना है। वो कनेक्ट कैसे होगा? आप में से किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक का हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग का हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट कुकिंग का हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट फिल्म्स का हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट लोकल लैंग्वेजेस का हो सकता है। तो क्या उन इंटरेस्ट को लेकर एक छोटा सा कोई एक आप ऑडियो बना सकते हैं, कोई आप उसके बारे में एलैबोरेट कर सकते हैं? आजकल पॉडकास्ट का जमाना है। पॉडकास्ट क्या है? इसी बारे में है कि कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभी आपके थॉट को
सामने वाला इतने अच्छे से नहीं बता पाता जितने अच्छे से हम बता पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वॉइस को एक्सप्लोर करने के अलग अलग तरीके हैं, और उन तरीकों में आप अपनी आवाज के थ्रू अलग अलग जादू कर सकते हैं। अब जैसे रेडियो की हमने बात करी, एफएम की हमने बात करी, अब आते हैं हम डिजिटल चैनल्स पर। आए दिन आपके पास बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स आते हैं, उन चैनल्स में अलग अलग आपके पास कंटेंट आता है। इसी तरह कोई फिटनेस को लेकर करता है, कोई गैजेट्स को लेकर करता है, कोई कल्चर को लेकर करता है। तो आज जैसे अगर हम टूरिज्म की बात करें, क्यों ना टूरिज्म को लेकर एक कंटेंट ऐसा शुरू किया जाए। हर एक इंडस्ट्री के डूज एंड डोंट्स होते हैं, पर सर मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, हमें अपने आप को पानी की तरह रखना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं, अब देखिए आज के टाइम में आपने भी देखा होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या प्राइवेट जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उसमें हम पैरामीटर्स लगा देते हैं। हमारा कंटेंट 18 से 35 साल के लिए है, हमारा कंटेंट 23 से 30 के बीच में है। हम बाकी लोगों को डिस्कनेक्ट क्यों करें? अगर कोई केएल सहगल साहब को सुनते थे, उसके बाद किसी ने बाबा सहगल को सुना, उसके बाद किसी ने अरिजीत सिंह को सुना। हम अरिजीत सिंह की बात नहीं करना चाहते हैं, हम केएल सहगल साहब की बात नहीं करना चाहते, बट हाँ, हम वो जर्नी आपको बताना चाहते हैं कि जब दिल ही टूट गया, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। जब मैंने अपने थॉट को, अपनी आवाज को कनेक्ट किया, तो शायद जिनको केएल सहगल पसंद होगा वो मेरे से कनेक्ट करेंगे, अरे वाह यार, इसने तो हमारे टाइम की बात करी। अरिजीत सिंह की बात, अरे ये तो मेरी बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, वी ऑल आर सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर हैं। हमें अपने फोन को ही स्मार्ट नहीं रखना है, हमें खुद को स्मार्ट करना है। और खुद को स्मार्ट करने के लिए वक्त के साथ चलने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्लोर करना है। इस आवाज में बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे एक्सप्लोर करने के तरीके हैं। ये आवाज को हम, अब सपोज बाहर की इंडस्ट्री में थिएटर का एक अपना रुतबा है, रेडियो इंडस्ट्री का अपना रुतबा है, फिल्म इंडस्ट्री का एक अपना रुतबा है, बट हमें अपने आप को ब्लॉक्स से हटाना होगा। एक वो दौर था जब 90s में हमने ये सोचना शुरू कर दिया था, कुमार शानू से ऊपर कोई सिंगर ही नहीं आएंगे जी, इनके अलावा तो इंडस्ट्री को कोई संभाल ही नहीं सकते। पर जो उस टाइम में किशोर साहब को सुनते थे, वो क्या सोचते थे, अरे देखो यार, अब ये कुमार शानू की बात कर रहे हैं, किशोर साहब का मुकाबला है कोई? अब जो किशोर साहब की बात करते थे, आज के टाइम में जो अरिजीत सिंह की बात कर, यार ये कोई अरिजीत सिंह के कोई गाने, आज क्या है, चार लोग चाय पीते हैं, वापस बात, लो जी आज इन देखो आप म्यूजिक इंडस्ट्री को फिर पुराने गाने को लेकर रिक्रिएट कर रहे हैं, भाई नया कुछ करो। सो नया क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नए के लिए हम खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मैंने जब जब गुलशन सर के साथ किसी सेशन में पार्टिसिपेट किया है, मैंने हर बार नया महसूस किया है। हर बार मैं वो एनर्जी लेकर चलता हूं कि यार कुछ एक्सप्लोर करना है। देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी ये दोपहर का टाइम है, हो सकता है आपके पेट में चूहे कूद रहे हो और मेरी आवाज से कहीं आपको लगे भाई अभी कितनी देर हमने और बातचीत करनी है। पर मेरा मुद्दा ये है, मेरा मानना ये है, अगर मेरी बात से आपके चेहरे पर स्माइल आती है, अगर आपको लगता है यार ये तो हमारे इमोशंस की बात है, मैंने आपको कहा कि मैं खुद को आपके बीच में महसूस करता हूं। दिस इज ऑल अबाउट पेंटिंग अ पिक्चर। हम पेंट कर रहे हैं पिक्चर को। वो पेंट ये है कि मैं भी आपके साथ साथ वाली कुर्सी पे बैठा हूं, मैंने सुबह से एक चाय पी थी, हो सकता है हमारी ऑडिटोरियम में बैठे बैठे किसी को खाली पेट एसिडिटी भी हो गई हो और वो सोच रहे थोड़ा पानी का ब्रेक मिल जाए, लेकिन इस पानी के बीच में अभी जो है ये मुद्दा सिर्फ आवाज का है। मैंने यहाँ बैठे आपके साथ अपने आप को आवाज से जोड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपनी आवाज को लेकर एक्सप्लोर करता रहता हूं। मुझे लगता है जमाना जो है वो, भले ही पैंडेमिक सिचुएशन ने बहुत सारी चीजों को हमने अपने आप ही हथियार डालने शुरू कर दिए। पैंडेमिक सिचुएशन आई, नो डाउट ये पूरे वर्ल्ड पर आई। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी हुआ कि उन कंपनीज पर जब इसका असर पड़ा तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को खड़ा करना होगा, क्योंकि जब कंपनी ने हमें सपोर्ट किया तो आज कंपनी को हमारी जरूरत हो सकती है, आज उनको हमारे काम की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है हम अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करें, एक्सप्लोर करते रहें। सो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। वॉइस के अलग अलग फील्ड हैं, थिएटर है, टीवी है, इंटरनेट है, आपका पॉडकास्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करना है म्यूजिक के साथ, कल्चर के साथ। और हाँ, जाते जाते एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर कभी आपको लगे कि कुछ आप मुझसे कुछ अगर कहीं सोचे कि कहीं आपसे जुड़ सकूं, तो आप इंस्टाग्राम और सोशल पेजेस पे मुझे देख सकते हैं, PANKAJ इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू।
अंशु जी को भी और आपको भी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. और before we proceed further, because I got 3 slips. They have got some other programs also. We would like to convey our deep thanks to Mr. Sandeep Nanduri ji, who is a Director of Tourism of Tamil Nadu. Whenever I think about Tamil Nadu, I always remember, I do not know whether I am pronouncing it properly or not. In Tamil Nadu, my favorite place was Kurtiyalam. I used to go there, put the oil on the body, stand under that particular mineral waterfall, right, coming from the top of the mountains, and within 20 minutes you rejuvenate on the wellness tourism. That's what I'm just trying to recollect. Also, Shio Shekhar Shukla ji, the Principal Secretary, Madhya Pradesh. That's wonderful. I have been told that there is a presentation by the Tamil Nadu Tourism. So, Ajay ji, I'll cut short my presentation. But before I complete, I would like to request both my dignitaries to say a few words. And cinematic tourism, film tourism, and particularly this segment of tourism has got a tremendous future. You can't imagine the mind-blowing budgets. What is the time is now? We have to all unite together. We have to pull, whether it's Bollywood or Tollywood or Bollywood or Hollywood or anybody, we got to get them to India. India has got beautiful locations. We got to develop them the best possible way. May I humbly request the public relation, the communication, the golf, the holiday and leisure. And with these words, I would request Mr. Sehgal to say a few words, who is the chairperson of Delhi chapter of the PRCI, and of course thereafter Sudhir Sokti ji, both of them. And I got an indication that thereafter they have got a Tamil Nadu tourism presentation. Please. Thank you very much. I think thanks for listening me again. आप कहेंगे कि golf tourism बता रहे थे, अब फिल्म की बात कर रहे हैं. So एक बार when I was working with the Lufthansa GSA, Mr. Subhash Verma was very close to me that time and now also. And एक बार मेरे client ने कहा कि मुझे upgrade करा देना रात को, and he was a very frequent traveler. तो मैंने कहा सर, मैंने sales manager के through message भिजवा दिया है, रात को आपको एयरपोर्ट में अपग्रेड कर देंगे. राजन, उसने मुझे बोला कि राजन सहगल, रात को 3 बजे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना तुम हो गए ना वहां पे सेल्स मैनेजर चलेगा, कोई पक्का काम करो. तो तब से मैंने ये बात अपने कान बांध ली कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. ये बात क्लाइंट के साथ कभी कच्ची बात नहीं करनी चाहिए. तो आई विल टेल यू, बिकॉज यू ऑल टूर ऑपरेटर, आपने ट्रैवल फैसिलिटेटर दोनों का देखो यार. तो आप सब लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि हाउ टू मेक मनी, क्योंकि मैं आपके अंदर से दिल की बात समझता हूँ. फ्रॉम लास्ट 2 years we are not making money. So being in the travel industry from last 30-35 years, people are sitting here. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि how you can make money through film tourism also. ये भी golf से जुड़ा हुआ है. I tell you, I was member of Swiss Golf Academy, and मैं 25 साल पहले जब स्विट्जरलैंड में golf खेलने जाता था, तो एक दिन golf खेलने के बाद मैं उनके बड़ा छोटा सा विलेज है इंटरलाकेन, जो कि अब एक हाउसहोल्ड नेम बन गया है इंडियन ट्रैवल कम्युनिटी के अंदर. उस टाइम उस जगह को कोई जानता नहीं था. उस टाइम कोई मोबाइल फोन नहीं थे, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं करते थे. तो एक दिन मैं शाम को उस विलेज में golf खेलने के बाद घूम रहा था, दूर तक I can't see a person, but suddenly I saw a Volvo coach full of Indian tourists getting down at Interlaken village. So being an Indian, जैसे उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के फ्लाइट से ये फ्लाइट के बाद तो मैं बड़ा खुश हुआ, and I was so excited to meet these people. So I went to the tour leader. I said, यार ये Indians हैं? कहता हाँ, आपको देख रहे हैं Indians हैं. I said, from which part of India they have come? He said they are from a small village in Rajasthan called Sikar. So these are very rich families. They all belong to one family. So I said, who told them? At that time, the Swiss tourism board was not so active. So I said, who told them about this remote place? They said the children were watching a movie of Govinda and Karishma Kapoor, and they were dancing in different parts, beautiful hills. So they found out that this is the place, and they want to explore all the places
where these shootings happen, whether it's a Yash Chopra film or so on. So I was amazed. They said they are on a 12 days tour of Europe. So this is the power of film tourism. So that day I decided that I also do something later on that I make some money from the film tourism. So from last 5 years with PhD Chamber of Commerce, every year I do an international film tourism conference in Mumbai, where I invite all the film production houses from Bollywood, from even from Hollywood also. I invite international tourism boards, I invite state tourism boards. So whole day they interact with each other. They invite them to come to their particular place and shoot them. So I won't take too much of time, but I will tell you what is the power of film tourism. Countries like Switzerland, Austria, United Kingdom, they don't need any foreign tourism board office in India because our production houses are Bollywood is doing so much great work for them that people suddenly almost go after seeing a film. And now the film released all over the world on one particular day. And when all Indians, whether it's Indians or NRIs, they see they want to go and see where the celebrity, their favorite film stars have got. So one day during a panel discussion in Mumbai, I asked the president of National Films that when you shoot a film outside India, that destination becomes immediately popular with Indian tourists. But you also shoot at beautiful locations in India. Why don't India become so popular among the foreign tourists that they should come and see, or NRIs come and see that particular place? So he gave me a very beautiful example. He said when we were shooting Ekta Tiger with Salman and Katrina in Austria, they asked us that we will give you lots of incentives, we will give you free stay, we will give you other so many supports. But only thing is when you start the film, the first shot of the film should be Austria. And they need a clipping from Salman and Katrina Kaif for 3 minutes that this is a beautiful location. We are enjoying our stay. We'll come back with our families. And I request my fans that please visit this country. It's a beautiful country. So that he said that clipping and the start of the shot with Austria makes a big impact, and the traffic from India to Austria increased. Like there was a film in Spain which was shot, and the traffic has gone up. जिंदगी न मिलेगी दोबारा. This Bharatanagar has improved the cruise tourism from India. And he said at the same time we are shooting Huts of India, Huts of Hindustan in Rajasthan, in one of the luxurious palaces of the world. But nobody from the government or nobody from the tourism board has approached us that Amir Khan and Amitabh Bachchan is here. They can give us clipping that we are in one of the best palaces of the world, and this clipping can go all over the world. It will be a big promotion for Rajasthan. So, these are the few things, and nowadays, पहले था कि picture वालों के shooting का arrangement करोगे, travel का, hotel का, आपको पैसे नहीं मिलेंगे. But this concept has changed because lots of multinational companies are financing these films. So, if you make a package, if you arrange for their hotel stay, if you arrange for the unit, even some travel companies are now location finders for them also. So, they suggest some good locations to them. And they do so. And with all, I think film tourism also. I have, when I was doing a conclave, and every conclave we one or two big personalities from Ramesh Shikhi, and so on. So I just give you a small example when we were doing 2 years back conclave in Mumbai, and Mr. Mukesh Bhatt was there. He said, Rajan, you are calling me, but I will say very harsh words in front of the minister. I said, we want people like this. So, when we came out, Delhi Tourism has a beautiful stall with the locations and everything, and Mr. Sudeep Sompi offered him a beautiful brochure from Delhi Tourism about the film locations in Delhi. So he said, Rajan, ये सिर्फ किताब ही है या वाकई में इसके हमें दिल्ली में मिलेगी? I said, no sir, you come, you will get everything in reality. Can you imagine within 1 week, he called me, he said, my production team is coming to you. You introduce him to Mr. Sudeep Sompi. Because the film which I am making is all related to tourism. The boys and tourist guide and the girls are from Bombay, and that film was very good.
So they came, sat with us. I introduced them to Sudhir Chokhi. He said, I will get you all the locations. So this is the power, you make money also, the film tourism also. If you just do a little bit of knowledge, you can do wonders with film tourism and it is not a Let's move to Delhi quickly. Yeah, because we have to hand over then. Yeah. Yes, Rajan, just explain how effective and how strong film tourism, it has that kind of strength. Tourism को promote करने के लिए we in fact till few years ago we never thought that the film could be such an effective tool to promote your destination. But yes, this is a fact that films can actually do wonders. Switzerland and many other countries have become popular primarily because of the film shootings taking place there and the locations shown in the film. So there is a curiosity in the minds of people कि जगह को हम कैसे और कहाँ देख सकते हैं. So till 2 years ago, every state, although they have resources, they have beautiful locations, but they were never showcased from that perspective. This promoting places and shooting in the locale were not very organized. So as in the case of Delhi, Delhi we have so much of Delhi can offer everything, all kinds of locations which a film producer looks for. And it is also the fact that the film industry in Bombay is also now looking towards out of Mumbai. Delhi is definitely one of the priority and foremost priority. So Delhi में shooting करने के लिए they had kind of feeling कि shooting permission से problem आती है. So they were kind of scared कि shooting में permission के लिए हमें अलग-अलग departments में जाना पड़ेगा, वहाँ पर समय लगेगा, permission मिलेगी नहीं मिलेगी, cancellation भी कैसा होगा, whom to contact. These technical things were important. So I remember 2013 में 2013 or 14 Mr. Rajkumar Dhanani was here to plan his shoot for the film called PK. So PK, we know the fate of the PK. It did a marvelous business. It was so popular, not only in India, but It went abroad also in different languages. across the globe. It will be more popular. So they spent, almost 2 weeks to do a recce, meeting all different departments. They came to us. We had a very close interaction with the whole team producing the film. So उसमें मुझे याद है कि ASI is one department which was very, very conservative. Conservative अभी भी है, but अभी to some extent things are opening up. So they wanted to shoot a scene at Agarsen Bauli. It was not placed. Now Agarsen Bauli is a beautiful Bauli. Most of us had also not seen such a beautiful place. So इन्होंने यहाँ पर एक shortlist किया होगा location को. They went to the ASA department requesting कि हमें यहाँ shoot करना है after the sunset. So this became a major issue. They said, no, we have a policy. This place is open only from sunrise to sunset. 5 बजे के बाद गेट बंद. वहाँ कुछ नहीं कर सकते. And if you put your cameras, lights, and all that, उसकी जो walls हैं, that can get damaged. This kind of, feelings they have in mind. But we used our resources and approached PG ASI. Gradually, things worked out. It happened, shooting happened in the night with a lot of precaution, not much of people around. तो उसका असर देखिए आज की डेट में this place is always full of people. It is always full of tourists.
not only Delhi Heights, but people coming from outside. They, because this place was shown in the film, Amir Khan sitting there. तो ये पहले वहां पर to best of my knowledge बहुत कम 50-100 लोग ही मुश्किल से जाते होंगे, whereas now thousands of people go there. So that is the kind of Please take your चीज seats वहां आनी and चाहिए. remain a little silent, please. We are about to begin with the next session. Ladies and gentlemen, the session will be